Good morning, everyone. So today we'll discuss few definitions under Criminal Procedure Code. So first definition is what is bailable and non-bailable offences. So that is under section 2 subclause A. So bailable offences and bailable case means which of those offences which are shown as bailable in first schedule of this code, right? So फर्स्ट शेड्यूल में जो ऑफेंसेस एज अ बेलेबल ऑफेंसेस मेंशन किए हुए हैं उन ऑफेंसेस को हम बेलेबल ऑफेंसेस कहते हैं. ठीक है. अब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस तो ऑफ कोर्स एनी अदर ऑफेंसेस means any other offenses than this bailable offenses are known as non bailable offense. But issue is that in bailable offense we can claim bail as a matter of right, but that does not mean that in non bailable offenses in no case bail would be granted, right? Only difference is that in bailable offenses you can seek bail as a matter of your right, and in non bailable offenses bail is totally in the discretion of the court. So this is the only difference. So in first schedule it is mentioned that what is bailable and what is non bailable offenses. ठीक है. तो second, which is most important, I can say, that is cognizable and non cognizable cases. So what do you mean by cognizable cases? Cognizable offenses are those offenses, we can say, which are severe or serious in nature, and the punishment for those offenses जिन्हें हम cognizable की कैटेगरी में लाएंगे is punishable with 3 years imprisonment. ठीक है. So 3 years और more जो imprisonment है वो जो offenses हैं जो serious nature के हैं उन्हें हम cognizable offenses कहते हैं. cognizable offenses आपको मिलेगी section definition 2C में. ठीक है. तो उन्हें हम कहेंगे आपको cognizable offenses. So and those offenses are also cognizable in nature, in which the police officer can arrest a person without warrant. So those offenses in which a police officer can arrest a person without the even order of the magistrate, that is under 156 subclause 1. So all the serious offenses punishable with imprisonment up to 3 years or more than that are taken as cognizable offenses, means serious offenses. But there are exceptions also, right? There are exceptions, that there are many offenses whose punishment is more than 3 years, but they are not coming under the cognizable offenses. So what are those offenses? All the offenses related to marriage, right? 493 to 497, bigamy and adultery, all the offenses of these nature जिनकी punishment 5 साल से भी ज़्यादा है, बट इन ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में हम नहीं डालते हैं. रीजन बिहाइंड इज दीज ऑफेंसेस आर प्राइवेट इन नेचर. सो व्हेन ऑफेंसेस आर प्राइवेट इन नेचर, तो यू कैन नॉट पुट द इंटरफेरेंस ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स एंड अदर अथॉरिटीज इन द प्राइवेट मैटर ऑफ अ पर्सन. ठीक है. मीन्स एनी ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 5 साल से भी ज्यादा है, जैसे कि मैरिज से रिलेटेड जो ऑफेंस हैं
आपकी बाईगेमी हो गया, अडल्ट्री हो गया, 493 टू 497 के जो ऑफेंसेस हैं, लेकिन उन्हें हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। रीजन ये है कि ये जो ऑफेंसेस हैं ये प्राइवेट इन नेचर होते हैं, और प्राइवेट जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें पुलिस का इंटरफेरेंस इज नॉट अ गुड थिंग. That was, I think in the mind of the makers of the CRPC when they put these offenses beyond the cognizable offenses category. ठीक है, तो यही एक रीजन है. दो इनमें जो पनिशमेंट है वो 3 साल से ज्यादा की है, लेकिन इन्हें हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में नहीं रखते. लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो ट्रेंड है 2013 जो अमेंडमेंट हुआ था उसके साथ ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है. चेंज इन दी सेंस कि अब कोई लिमिटेशंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि अगर कुछ ऑफेंसेस ऐसे भी हैं जिनके 2 साल से भी कम हैं लेकिन वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आ जाएंगे. सो दीज आर ट्रेंड. अभी ऐसे कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है, बट जिस तरीके से हम 2013 अमेंडमेंट को देखते हैं, 166B का जो एडिशन हुआ था उसको देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रही हूं कि अब ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है. सो दिस कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आपको हो गया जो सीरियस इन नेचर होते हैं, जिनकी पनिशमेंट 3 साल या उससे ज्यादा की होती है. ठीक है, तो ये सारे जो ऑफेंसेस होते हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं. एंड ऑफ कोर्स नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं वो लेस सीरियस इन नेचर होते हैं, और उनमें जो पुलिस ऑफिसर है वो वारंट के बिना अरेस्ट नहीं कर सकता. तो ये हो गया आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कंप्लेंट. सो व्हाट इज कंप्लेंट? हाँ सॉरी, नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो आप पढ़ेंगे सेक्शन 2 सब क्लॉज L में. ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्लेंट. व्हाट इज कंप्लेंट? कंप्लेंट है सेक्शन 2 सब क्लॉज D. कंप्लेंट आपको कहता है ऑल द एलिगेशंस वेदर मेड ओरली और रिटन इन राइटिंग टू द मजिस्ट्रेट. अब भाई क्यों लिखेंगे मजिस्ट्रेट को? टू द कंप्लेनेंट हु इज राइटिंग द कंप्लेंट इज ऑफ द व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन ऑन हिज कंप्लेंट. राइट, मतलब कि एक कंप्लेंट चाहे वो ओरल हो या राइटिंग हो मजिस्ट्रेट को लिखी जाएगी, इस व्यू से लिखी जाएगी कि मजिस्ट्रेट जो है उस कंप्लेंट पे एक्शन ले, जिसमें ये क्लियर मेंशन है कि एक पर्सन वेदर वो नोन है या अननोन है उसने एक ऑफेंस कमिट किया है जो कि मजिस्ट्रेट को जिसका संज्ञान लेना चाहिए. तो ये आ जाता है आपका कंप्लेंट में, जो कि 2D में डिफाइंड है. अब आप देखते हैं इंक्वायरी. इंक्वायरी है 2G में. So what is inquiry? Inquiry is basically inquiry is other than a trial, right? Inquiry is other than a trial conducted under this code by the magistrate. तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज जो फ्रेम होते हैं, चार्ज के फ्रेम होने से पहले की जो प्रोसीडिंग जो कोर्ट में होती है, जस्ट टू फाइंड आउट द ट्रूथ दैट वेदर दैट पर्सन वेदर देयर इज एनी चार्ज कैन बी मेड अगेंस्ट दैट पर्सन और नॉट, तो वो जो इन प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं इंक्वायरी. सो इंक्वायरी जो होता है उसका रिजल्ट कन्विक्शन या अक्यूटल में नहीं निकलता है. इंक्वायरी सिर्फ मजिस्ट्रेट को ये जानने में हेल्प करती है कि क्या इस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस कमिट किया है या नहीं. अगर ये पता चल जाता है इंक्वायरी की जो प्रिलिमिनरी जो प्रोसेस होता है उसमें, तो चार्ज फ्रेम करने में आसानी होती है. इसी को कहते हैं इंक्वायरी. that is under section 2 subclause G. Now investigation. So what is investigation? Investigation is, of course, investigation is other than an inquiry or conducted by the police officer just to find out or collecting the evidence, right? So investigation under section 2 subclause H is the process of collecting the evidence. और कौन एविडेंस कलेक्ट करता है? पुलिस ऑफिसर. और
police officer or other person, but not a magistrate, but other person who is authorized by magistrate to do that. तो ये है आपकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा होती है या उस व्यक्ति के द्वारा जिसे कि मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है. अब आ जाते हैं सम्मन केसेस और वारंट केसेस. 2W है आपका एक जो केस है, 2W है आपका सम्मन केसेस. तो सम्मन केसेस वो होते हैं ऑल अदर केसेस नॉट बीइंग अ वारंट केस इज नोन एज सम्मन केस. ठीक है. एंड वारंट केस आप पढ़ते हैं 2X में. ऑल द offenses punishable with death, imprisonment for life or punishment beyond punishment up to 2 years. So उन सारे केसेस में वारंट इशू होता है. ठीक है. अब कई बार ऐसा भी होता है कि एक केस ऐसा है कि जिसमें सम्मन इशू कर दिया है कोर्ट ने, लेकिन जब कोर्ट ने सम्मन इशू कर दिया है उस पे कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है. ठीक है. उस पे जो अक्यूज्ड है वो ना ही कोई प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट करता है और ना ही कोर्ट को आके वो अपना स्टेटमेंट देता है. तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में जो कोर्ट है सम्मन के बाद वारंट भी इशू कर सकता है. तो दिस इज इन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है. ठीक है. ऐसा नहीं है कि जब एक सम्मन केस है तो उस सम्मन केस में कोई रिस्ट्रिक्शंस हो गई हैं कि उसमें वारंट नहीं हो सकता. और एक सम्मन जो है, सम्मन इज जस्ट यू कैन से इट इज इक्विवेलेंट टू प्लेंट इन सीपीसी. ठीक है. सिविल प्रोसीजर कोर्ट में जो हम प्लेंट पढ़ते हैं और यहाँ पे जो सम्मन है ये इक्विवेलेंट ही होता है. क्योंकि अभी जब हम डिटेल में वारंट और सम्मन को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि उसमें मेंशन होता है द रीजन व्हाई द कोर्ट इज कॉलिंग यू. ठीक है. आपने क्या किया है और आपको किस डेट में क्या आकर के जवाब कोर्ट को देना है. सेम प्लेंट में भी होता है, सिविल कोर्ट में फाइल होता है, उसमें उनके एलिगेशंस होते हैं और अदर पार्टी से आप रिटन स्टेटमेंट कॉल करते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट इज, ये तो क्या, दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन. दीज आर द इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, राइट. नाउ नेक्स्ट इज आपका आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ हियरार्की एंड पावर्स ऑफ द कोर्ट. दो वी विल डिस्कस इन द डिटेल, बट let me tell you the hierarchy of these court cases and their courts in India, setup of courts basically in India and their powers. So first there is a Supreme Court of India. ठीक है. established under article 124 of the constitution. ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो एम्पावर है वो एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ, राइट. उसके बाद आ जाता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट आपका एस्टैब्लिश होता है अंडर आर्टिकल 214 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. एंड हाई कोर्ट भी आपका एम्पावर होता है किसी भी सेंटेंस को देने के लिए जो कि लॉ ऑथराइज करता है. अब ये तो आपकी हो गई ऑल ओवर इंडिया की बात करें, सुप्रीम कोर्ट. स्टेट्स की बात कर ले हाई कोर्ट. अब आ जाता है स्टेट के अंदर आपके डिस्ट्रिक्ट्स, और डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाते हैं डिवीजन एंड सेशंस. तो डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट सेशन डिविजन्स में होता है. तो एक सेशन कोर्ट होगी डिस्ट्रिक्ट की. उस सेशन कोर्ट में सेशन जज होगा और एक एडिशनल सेशन जज होगा जिनकी पावर सेम होती है. एडिशनल सेशन जज तब अपॉइंट करता है हाई कोर्ट जब उसको लगता है कि देयर आर रिक्वायरमेंट ऑफ मोर जजेस. We'll discuss it in later on. Now, today I'm only telling you the hierarchy of the courts. So, जो सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज होता है ये दोनों एम्पावर होते हैं कोई भी पनिशमेंट देने के, एम्पावर्ड ऑथराइज बाय लॉ. बट ओनली एक्सेप्शन इज कि डेथ सेंटेंस जो ये पास करते हैं वो उसको हाई कोर्ट की अप्रूवल की जरूरत होती है. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसी में असिस्टेंट सेशन जज हो गया, एडिशनल सेशन जज हो गया. एडिशनल सेशन जज के बाद आता है आपका असिस्टेंट सेशन जज. तो जो असिस्टेंट सेशन जज होता है उसके पास पावर होती है 10 साल तक की वो पनिशमेंट दे सकता है और फाइन दे सकता है. तो ये तो आ गया सेशन की बात करते हैं. सेशन के बाद हम डिवीजन में आते हैं. सब डिवीजन जिस तरीके से और क्लासीफाई होता है सेशन में डिस्ट्रिक्ट्स. तो एक दो तरीके की चीजें, एक तो मेट्रोपॉलिटन होता है एरिया जहां पे आपको पता है 10 लाख से ज्यादा की पॉपुलेशन होती है, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं. और एक नॉर्मल जो एरिया होता है, मेट्रो सिटीज जो होते हैं, ठीक है, नॉर्मल सिटीज जो होते हैं. तो जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वहां पे एक होता है चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एक होता है आपका सेम एडिशनल
चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। सो ये हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया, इधर डिवाइड हो गया, और नॉर्मल जो मजिस्ट्रेट है अदर सिटीज में वो इधर हो गया। तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होती है उनकी पावर होती है 7 साल तक की सजा वो दे सकते हैं और फाइन के साथ। अब आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास भी पावर होती है कि वो 7 साल तक की आपको पनिशमेंट जो है दे सकता है। अब आते हैं जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है वो फिर सब डिवाइडेड इनटू 2 सब कैटेगरीज। वन इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड सेकेंड इज स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जब जरूरत होती है तो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी अपॉइंट होता है। तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है एंड जो स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है, इनकी पावर सेम होती है और इनको दोनों को पावर होती है कि ये 3 साल तक की पनिशमेंट दे सकते हैं और 10,000 रुपीज का ये फाइन लगा सकते हैं। तो ये तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात हो गई। अब नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज की बात होती है, वहां पे होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जैसा मैंने आपको बताया 7 साल की सजा और फाइन होता है। वो डिवाइड होता है सब डिवीजन में। क्या होता है? सब डिवीजन में सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। ठीक है, सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो डिवाइड होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ जो फर्स्ट क्लास होता है उसकी 3 साल की सजा देने की क्षमता होती है और 10,000 रुपए फाइन होता है। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास होता है उसकी क्षमता होती है आपकी उसकी क्षमता होती है 3 साल तक की वो सजा दे सकता है। दोनों की सेम होती है, बट जो फाइन होता है बस वही दोनों का डिफरेंस होता है कि जो आपका जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है वो 10,000 रुपीज तक की फाइन आपसे ले सकता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो सेकेंड क्लास होता है उसके पास से 5,000 रुपीज तक जो फाइन लेने की क्षमता होती है। तो ये है बेसिकली एक डिफ्रेंसिएशन। मैंने सोचा आपको मैं समझा देती हूँ कि जो कोर्ट का स्ट्रक्चर है इंडिया में वो स्ट्रक्चर किस तरीके का है। और जो आप देखेंगे आपका सीआरपीसी का चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है वो इन्हीं बातों में बात करता है। सेकंड बात करता है आपकी डिवीजन ऑफ द कोर्ट्स, जो टेरिटोरियल डिविजन्स एंड अदर डिविजन्स, और चैप्टर 3 बात करता है पावर ऑफ दीज कोर्ट्स। So I try to explain you in the simple language the hierarchy and the division and the structure of the court and their power. Okay, in next class we'll discuss these powers and these differentiation in detail, right? And please don't forget to subscribe and like the video.